you from? I would like to welcome you on behalf of the Wings of Desire organization. Thanks a lot for joining us. The honor is mine. Thank you again for inviting me here. Sir, it's great to see you every time with us. It's always a learning environment around you. So Thank you for the kind words. Yes, sir. I hope this session benefits all our viewers, and each one of them takes something while when they go from here. So, yes, please. सर जैसा कि मैं अपने व्यूअर्स को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आज का जो सेशन का टॉपिक है दैट इज कॉलेज टू कॉर्पोरेट, जिसकी हम बात करने वाले हैं. दैट इज दिस इज द टॉपिक इज कॉलेज टू कॉर्पोरेट, इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज थिंग्स दैट आर नेसेसरी for an individual to enter when they enter the corporate world, right? So which all those qualities that are necessary to build up our career. So without any ado, we can start with the first question, sir, if you agree. Yeah, before we come to the question answers, Afnan, I would like to briefly address the students, and I'll just like to take a couple of minutes. Yes, sir. Before we come to the interactive session. Yes. A very good evening to all of you, and I'm really thankful to the Wings of Desire for inviting me here and to talk to you guys. I mean, so the topic is college to corporate. It's a very important topic to discuss upon. Before we begin the interactive session, I just like to tell you actually what you mean by college to corporate. When we study in a college, we obviously acquire certain skills and knowledge, usually academic skills and some technical skills. Corporate world is actually business world where we actually aspire to go, but the problem lies between the bridging of the gap between the college and the corporate world. Usually, when we talk about bridging the gap, I would like to tell you that this is one of the most alarming and concerning area to bridge the gap between the corporate world and the universities. We do provide quality education, no doubt about it. But when it comes to the requirements of the corporate world, I mean, somewhere we need to do some self-introspection as far as the universities are concerned. When we talk about India's or world's premier institutes, when we talk about India, we talk about IIMs, we talk about IITs and all the premier institutes. Why they are IITs and why they are IIMs? The reason is basically they have a very strong bond. They have a very strong connection between them and the corporate world, where actually they prepare their students to go. So wo jo area hai, that is actually we need to discuss upon that, because we do provide lot of knowledge and academic skills and all, but we fail to understand what are the requirements and the needs of the upcoming the upcoming challenges of the job market. So IIMs are IIMs today, IITs are IITs today, because they nurture and they groom their students according to the requirements of the market. So and as a result, they keep on updating their curriculums also. So I mean, college to corporate, जहाँ पे सिर्फ students का ही contribution नहीं है, वहाँ पे university and students equally they have to play the equal role in order to bridge the gap. So when I talk about college to corporate, there's a huge gap in between. It's a huge race. It's a huge challenge that we need to overcome. So if I talk about AMU, because I'm a part of AMU, I'd like to tell you that no doubt we are providing quality education for years. But still, I believe that when we talk about the professional courses, we need to do a lot of hard work again, a lot of introspection in terms of updating of the curriculums, updating of the skills of the students, and preparing them for the upcoming challenges. Especially post-COVID is going to be very, very dynamic, very, very different world altogether. So we need to understand this concept, which is very important. And Afnan, I would like to tell all you one more fact, which is again very important. There is a concept called employability, being employable. So when we talk about being employable and when we talk about employability, this is actually what we call college to
college to corporate. And according to a lot of researches, which they have been conducted recently, also in the recent past, and they have given very alarming figures. I would like to address the students for this because it's something very alarming. We should all be, concerned about it. That there are a lot of reports which are being generated and given to the government of India also, and they have clearly mentioned that no doubt Indian universities and colleges are producing a good number of graduates, but when it comes to being employable, we lack those skills. We actually don't know. The colleges actually don't know what actually being employable. Our students actually don't know what do you mean by being employable. So getting a job is different. Getting a desired job is different. Exactly. If I do an MBA program, if I do an engineering program, obviously I'll end up in a job. But when I talk about my ideal job, that is the area that we all should work together. So that college to corporate means that I should nurture my students in a way that I should prepare them for the corporate world and should inculcate in them those skills and knowledge which are actually the need of the hour, which are required these days. What are these basic skills that should be inculcated in the students? जो students में होनी ही चाहिए वो skills जो अभी से हम करें students में so that this problem gets resolved. बिल्कुल. और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैंने अभी जो रिसर्च की बात की थी, एक एवरेज निकल के आया है कि around 33% graduates produced in India every year are employable in nature, which is very alarming. Suppose if we produce 100 graduates every year in India, out of 100, 77% of graduates are actually not employable. So, and this includes technical as well as non-technical courses. तो इस पे हम लोगों को काम करने की जरूरत है एज एन इंस्टीट्यूशन और एज अ इंडिविजुअल, दोनों लेवल पे. या तो मैं इसमें थोड़ा सा एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल आता है कि वो क्या चीज है जिसको हम कहते हैं बीइंग एम्प्लॉयबल, या क्या एक्सपेक्टेशंस है कॉर्पोरेट वर्ल्ड की. मतलब हम तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि कॉर्पोरेट के लिए, मतलब आपके लिए एज ए स्टूडेंट एक आइडियल जॉब होती है, और कॉर्पोरेट के लिए आप एक ड्रीम कैंडिडेट होते हैं, आइडियल कैंडिडेट. तो आपके लिए ड्रीम जॉब होती है और जॉब के लिए आप एक आइडियल कैंडिडेट होने चाहिए. तो बेसिकली ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन कि आप डिजायर कर रहे हैं अपनी ड्रीम जॉब को और आपकी ड्रीम जॉब तलाश कर रही है एक आइडियल कैंडिडेट. ठीक है. तो मसला कहाँ आता है अफनान, वही आता है कि ये बात नहीं आती कि कौन खराब है कौन अच्छा है. बात ये आती है कि क्या हमारी स्किल्स मैच करती हैं एक्सपेक्टेशन से या नहीं करती. क्या हमारी नॉलेज, हमारी स्किल्स इतनी अपडेटेड है कि हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की या उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पा रहे हैं या मैच कर पा रहे हैं. जहां हमारी स्किल्स और जॉब की रिक्वायरमेंट मैच हो गई, वी आर सिलेक्टेड, और जहां हमारी स्किल्स और जॉब रिक्वायरमेंट्स मिसमैच हो गई, वी आर नॉट सिलेक्टेड. तो अच्छा खराब का सवाल नहीं. यस सर. सो सर, कैसे एक स्टूडेंट वही स्किल्स डेवलप करे जो रिक्वायर्ड है आने वाले टाइम में अभी से, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको डेफिनेटली नहीं पता है कि उनको एमबीए करना है, इस फील्ड में करना है, मार्केटिंग में करना है या फिर फाइनेंस में करना है. तो फिर दे डोंट नो कि फाइनेंस का सर्टिफिकेट करें, उसके लिए वर्कआउट करें, या फिर तो कौन से ऐसे बेसिक चीजें हैं जो सब स्टूडेंट्स को अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए डेवलप करना. नहीं, बहुत अच्छा सवाल है अफनान, और आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू हैव रेज्ड. आई वुड लाइक टू एड्रेस ऑल द स्टूडेंट्स, लाइक टू टेल देम कि तीन चीजें हैं, तीन एरियाज हैं. अगर आज के स्टूडेंट्स ने उन पे काम कर लिया तो मेरे ख्याल से दे विल बी एन आइडियल कैंडिडेट फॉर एनी जॉब, एनी कंपनी, एनी करियर. और सिर्फ प्रोफेशनली नहीं, पर्सनली भी उनको लाइफ में हमेशा ये चीज काम आने वाली है, और प्रोफेशनली तो आएगी. तीन एरियाज हैं जहाँ पे हमें काम करने की. So what are those three areas? First is, which is very important, is we need to develop our communication skills, which is very important. ठीक है. Communication skills का मतलब सिर्फ अंग्रेजी नहीं है, let me tell you, it's not only English. Communication skills का मतलब ये है कि हम अपनी बात को वर्बली और नॉन वर्बली कितनी अच्छी तरीके से और आसानी से सामने वाले तक पहुंचा पाते हैं. और क्योंकि now it's a globalized world, तो the only means of language is English. तो मेरी पहली रिक्वेस्ट स्टूडेंट से ये है कि they should develop the basic skills of speaking in English, and that too, more confidently in a better way, which is very important.
here comes is how can they develop those skills, राइट कैसे? राइट, मैं उसी पे आ रहा हूँ, लेट मी कंप्लीट माय आंसर। पहली चीज तो ये है, दे नीड टू डेवलप देयर स्पोकन इंग्लिश, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चाहे आपको किसी भी करियर में जाना हो, आपको कोई किसी भी फील्ड को चुनना हो, नॉट ओनली द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, द बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स आर रिक्वायर्ड। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पॉजिटिव पर्सनैलिटी। ठीक है, अब हम लोग ये समझते हैं, देखते हैं कि बहुत से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में देखा है कि साहब वहाँ लिखा होता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश। आई एम सॉरी टू से दे इवन डोंट नो व्हाट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज समथिंग डिफरेंट। तो वो अपने आप में एक पूरा एरिया है जहाँ पे मुस्तकिल काम करने की जरूरत है। तो मैं बताऊंगा आपको इसमें क्या क्या चीजों में काम करने की। तीसरा है अपडेटेड स्किल्स एंड नॉलेज। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप फाइनेंस में हैं, कॉमर्स में हैं, मेडिसिन में हैं, आईटी में हैं, आप ह्यूमैनिटीज में हैं, जिसमें भी आप हैं, जो भी लॉ में है, योर नॉलेज शुड बी अपडेटेड एंड द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, यू शुड बी गुड इन योर सब्जेक्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने पिछले 18 साल में समझ लीजिए कि मैंने अलग अलग लोगों से पूछा, चाहे वो कंपनी के सीईओज हों, चाहे वो आईएएस ऑफिसर्स हों, चाहे वो साइंटिस्ट हों, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हों, सबसे मैंने पूछा कि आपके हिसाब से क्या क्वालिटीज एक यंग ग्रेजुएट को होनी चाहिए जिसको आप अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ ये मेरे लिए आइडियल कैंडिडेट। तो सबका समरी ये निकल के आया कि साहब पर्सनैलिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और तीसरा नॉलेज अपडेटेड होनी चाहिए। तो मैंने एक सवाल किया कि व्हाट डू यू मीन बाय अपडेटेड नॉलेज, या व्हाट डू यू मीन बाय स्किल्स। एक कंपनी के एमडी थे, आईटी कंपनी के बहुत बड़े, उन्होंने मुझे जवाब दिया कि फॉर एग्जांपल इफ अ यंग आईटी ग्रेजुएट कम्स टू मी फॉर एन इंटरव्यू एंड इफ आई आस्क हिम व्हाट इज अ सीपीयू, सो ही विल टेल मी सर सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बट अगर मैं उससे वही पूछूं यार कैन यू कनेक्ट दिस सीपीयू विद दिस मॉनिटर, और वो स्ट्रगल कर रहा है, ऐसा आईटी का बंदा मेरे लिए बेकार। अगर अगर मैं किसी कॉमर्स वाले से पूछूं व्हाट इज अ बैलेंस शीट, और वो कहता है सब बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है तो साल के आखिर में बनता है, लेकिन अगर मैं उससे वही पूछूं कि व्हाट आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, और वो स्ट्रगल कर रहा है आंसर देने में, तो ऐसा कॉमर्स का बंदा मेरे लिए बेकार है। तो द बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ योर सब्जेक्ट इज वेरी, ये तीन चीजों पे हमें काम करने की, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और अपडेटेड नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट। क्लियर? ये मेरे ख्याल से अगर हमारे स्टूडेंट इन तीन एरियाज में काम कर लेंगे, मेरे हिसाब से कहीं बात नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला अपना जो तुम्हारा एक सवाल था कि हम अपनी स्किल्स को कैसे डेवलप करें, खासतौर से कॉमन स्किल्स, मेरा अपना मानना यह है कि स्पोकन इंग्लिश को ठीक करने के लिए देयर इज नो नीड टू जॉइन एनी कोचिंग प्रोग्राम। हम लोग ऑनलाइन या इवन हम लोग सेल्फ प्रैक्टिस के जरिए भी अपनी अंग्रेजी को ठीक कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, हमें मास्टर नहीं बनना है, हमें उतना अंग्रेजी में बोलना आना चाहिए कि हम अपनी बात को कह लें और दूसरे की बात को समझें, और वो हम लोग सेल्फ प्रैक्टिस से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, हम सबको आती है, हम सब बोल लेते हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज अफनान, मेरे हिसाब से मैंने देखा है कि तीन वजह होती हैं जिसकी वजह से हम अंग्रेजी स्पोकन थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं बोलने में। एक सबसे पहले जो मैंने देखा है एमयू में, मैं अगर एमयू की बात करूँ क्योंकि मैं उसी सिस्टम का हिस्सा हूँ और यहीं से पढ़ा भी हूँ, एक चीज होती है फियर साइकोसिस, अननेसेसरी फियर साइकोसिस, अननेसेसरी नर्वसनेस के पता नहीं हम बोल नहीं पाएंगे, हम तो कैसे बोलेंगे, हमें तो आता ही नहीं है। तो पहले से हम लोग एक नेगेटिव ऑरा में आ जाते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो हमें उससे बाहर निकलने की जरूरत है। हम सब बोल सकते हैं जब मौका मिलता है, और मौका मिलता है सब बोलते भी हैं, लेकिन हमें सिर्फ प्रैक्टिस में आने की जरूरत है। दूसरा है इन्वायरमेंट, हमें एक इन्वायरमेंट जनरेट करना है अपने एमयू में, अपने कैंपस में एक कल्चर डेवलप करना है कि जहाँ पे हम लोग थोड़ा वक्त निकालें रोजाना, कि कोई दोस्त बना के, कोई ऐसा ग्रुप बना के, कुछ भी ऐसा करके कि हम लोग अंग्रेजी कम से कम थोड़ा बहुत आपस में बोल लें। तो कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ क्लासेस के अंदर भी बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलने का माहौल नहीं है, स्टूडेंट ग्रुप्स में भी नहीं है, फ्रेंड सर्कल में भी नहीं है। तो जब बिल्कुल तो हम कैसे बोल पाए, तो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने की जरूरत है, उस फियर से बाहर आना है, और बेसिक रूल्स जो है लैंग्वेज के ब्लंडर्स करते हैं उसको थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। बेसिक टेंसेस, बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेसिक चीज, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है ग्रामर के, फंक्शनल ग्रामर, बेसिक ग्रामर, और उसके लिए बहुत सारी किताबें आती हैं। और सेल्फ प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह ताला उसको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक घंटा भी अगर बोलेंगे रोजाना तो आई थिंक दे विल ओवरकम दिस वीकनेस।
दूसरा मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए भी किसी कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। AMU अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड्स वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। ठीक है, आपको कोई कोचिंग ज्वाइन, हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि आप फोरम्स ज्वाइन करिए, आप क्लब्स ज्वाइन करिए। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ अफनान, शी इज आल्सो स्टूडेंट, सेकंड ईयर स्टूडेंट ऑफ AMU, जिस तरह से ये लीड ले रही हैं, या आप लोग जिस तरह से NGO से जुड़े हुए हैं और इस तरह के इवेंट्स कर रहे हैं, ये सब कंट्रीब्यूट करता है आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने। ठीक है, तो कोई कोचिंग क्लास आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर सकती। आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराइए, AMU में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उसका पार्ट बनिए, लीड लीजिए, आगे बढ़िए, NGOs को ज्वाइन करिए, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करिए, टीम में काम करने का एक्सपीरियंस लीजिए। ठीक है, डिबेट्स करिए, स्पीचेस करिए, इस तरह के प्रोग्राम्स करिए, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत जल्दी डेवलप खूब। और अलग अलग कल्चर के लोगों से दोस्ती करिए, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से दोस्ती करिए। एक साथ AMU में माशाल्लाह हमारे हॉस्टल लाइफ हमें सिखाती है कि हमें एक लिबरल इंसान कैसे बनना है, एडेप्टिव कैसे बनना है, सोशल कैसे बनना है, वो सब हमें सिखाती है। तो मेरे हिसाब से अगर हम AMU की ही फैसिलिटीज को अवेल कर लेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी बहुत डेवलप, और जिसको हम कहते भी हैं AMU इज नोन फॉर इट्स तालीम एंड तरबियत। व्हाट इज तरबियत? तरबियत इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और लास्ट चीज जो मैं कहना चाहूंगा, जो ये इस वाले क्वेश्चन को लेके, स्किल्स की जो मैंने बात करी थी, स्किल्स को हमें अपडेट करने की जरूरत है। जो हमारे कोर्स करिकुलम है हम उसे बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग ऑनलाइन के जरिए, हम लोग कुछ वर्कशॉप्स होती हैं यूनिवर्सिटी में, या ऑनलाइन डिजिटल वर्कशॉप्स होती हैं, या ऑनलाइन इंटर्नशिप्स होती है, वो कम करके अपनी स्किल्स को हम डेवलप कर सकते हैं। सर जैसे कौन सी वर्कशॉप्स होती हैं, एनी स्पेसिफिक वर्कशॉप जो हमारे व्यूअर्स ज्वाइन कर सकें? यू नो देयर आर देखिए अभी, हाँ, करते हैं तो एक राइट अपना डायरेक्शन। अभी तो क्योंकि हालात थोड़ी सी प्रेसिंग और क्राइसिस वाली सिचुएशन है। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो रिमोट वेबिनार्स हो रहे हैं, जो डिजिटल वेबिनार्स हो रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट करें, और जो खास तौर से आपके सब्जेक्ट से जुड़े हुए वेबिनार्स हैं, जिसमें आपको लगता है कि आपकी नॉलेज इनहेंस हो सकती है, उसको जरूर ज्वाइन करें। और जब इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी खोलेगी, हालात बेहतर होंगे, तो इस तरह की कोई भी वर्कशॉप होती है जिसको आपको लगता है कि इट मे एड वैल्यू टू माई करियर, इट मे एड वैल्यू टू माई नॉलेज, उसको आप ज्वाइन करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेन ये होती है कि उनको पता नहीं चल पाता है कब वेबिनार्स हो रहे हैं, नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। सो हाउ वो ऐसे कौन से चैनल सब्सक्राइब करें या फिर कौन से वेबसाइट पेजेस फॉलो करें कि उन तक ये न्यूज पहुंच जाए कि द वेबिनार विल बी हेल्ड? देखिए पहली बात तो ये है कि हम लोग आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हम लोग बहुत सारे ग्रुप्स में ज्वाइन ऑलरेडी हम लोग रहते हैं, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे नोटिफिकेशंस जनरेट हो जाते हैं। और मेरा अपना एक मशवरा ये भी है कि जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया की, AMU है, DU है, उनकी वेबसाइट एक्सेस करते रहिए रेगुलर बेसिस पे, और देखते रहिए कि JNU है, DU है, जामिया है, AMU है, और भी इस तरह की यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ लीडिंग प्राइवेट कॉलेजेस हैं, IIMs वगैरह की आप वेबसाइट एक्सेस करते रहिए, और देखते रहिए कि वहां से कोई ऐसे वेबिनार्स तो नहीं हो रहे हैं कि जहाँ पे आपको उनका, क्योंकि वो लोग हम लोग जैसे हम लोग करते हैं, सो वी नोटिफाई, आप लोगों ने किया, आपने नोटिफाई किया, तो ऐसे सारे इंस्टीट्यूट नोटिफाई करते हैं, हमें उनको फॉलो करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जो AMU के होते हैं, वहाँ तो AMU की वेबसाइट्स पर ऑलरेडी पोस्ट होता है नोटिफिकेशन। तो मेरी रिक्वेस्ट स्टूडेंट से ये है कि अपार्ट फ्रॉम जनरल नोटिफिकेशन, जो सोशल इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट में जरूर फॉलो करें। अपकमिंग इवेंट्स वाला सेक्शन होता है, उसमें पता चल जाता है कि कौन सी तरह के इवेंट्स हो रहे हैं जो हम ऑनलाइन ज्वाइन। I would request my viewers कि आप लोग ये points jot down करते रहिए. This will be helpful for you. So sir, अगर हम लोग आगे बढ़कर CV बिल्डिंग की बात करें तो बहुत कंफ्यूजन है कि CV सर वी हैव रीच्ड अ स्टेज, वी हैव रीच्ड अ स्टेज जहां पर आना चाहिए, बट मैनी ऑफ अस स्टिल स्ट्रगल कि एक CV को कैसे परफेक्ट बनाना है। सर पहला तो ये क्वेश्चन है कि एक CV को कैसे, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट आर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट्स जो CV में डालने चाहिए सो दैट योर CV स्टैंड्स आउट of the rest of the people? अपना CV, as you rightly pointed out, is one of the most important document of your career. तो CV में जब CV बनाते हैं तो ऑब्वियसली द कंसर्न्ड अथॉरिटी
कंसर्न कंपनी है या कहीं भी आप सीवी अप्लाई करते हैं, सिर्फ जॉब के लिए नहीं, वैसे भी आते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो आपको देखते हैं ऑन अ पीस ऑफ पेपर, आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आप फॉर एग्जाम्पल अफनान एज अ पर्सन पूरी एक कागज पे होती है, तो वो आप इट्स सेलिंग, यू सेल योरसेल्फ ऑन अ पीस ऑफ पेपर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सीवी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा सही सीवी होना चाहिए। और सीवी का कोई ऐसा लेटेस्ट फॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मेट चेंज होती है, वेरी इजी एंड सिंपल, इट शुड बी रीडेबल, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मैंने देखा है बहुत से बच्चों की सीवीज देखे मैंने कि वो आधे पेज में, तो एचआर कंफ्यूज होता है कि इधर देखूंगा पहले, इधर देखूंगी, इधर देखूंगी, इधर देखूंगी। तो बहुत सिंपल सा आपको सीवी रखना है अपना। आइडियल जो हेडिंग्स का जो फॉन्ट साइज चल रहा है स्टैंडर्ड, वो 14 होना चाहिए। जो कंटेंट होता है अंदर अंदर वो 12 फॉन्ट साइज का होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने देखा है बहुत से बच्चे लिखते हैं करियर ऑब्जेक्टिव में, सो दे यूज वेरी टिपिकल पेस्ट कॉपी पेस्टेड लैंग्वेज, और बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं अपने स्टूडेंट्स को, कि मैं एक इंटरव्यू में देख रहा था कि एक लड़के ने अपने सीवी पे लिखा था कि आई विल यू नो सर्व दिस विद फुल डेडिकेशन, डिवोशन एंड हार्ड वर्क। तो एचआर ने उससे यही सवाल कर लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवोशन एंड डेडिकेशन, एंड ही वाज नॉट एबल टू रिप्लाई। तो आप वो चीज सीवी पे नहीं लिखें जो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। सो गो फॉर इजी वर्ड्स, ठीक है, रियलिस्टिक सीवी बनाइए, ऐसा सीवी बनाइए जो आप प्रूव कर सकें, जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने अचीवमेंट जो, क्योंकि सीवी के अंदर कहीं ना कहीं आपको दिखाना है कि आप एक कंप्लीट पैकेज है, ठीक है, आप पढ़ाई में भी अच्छे हैं, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अच्छे हैं, आपके आपके पास रिक्वायर्ड टेक्निकल स्किल्स भी हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये आपको सीवी में देनी है। लोग कहते हैं साहब एक ही वर्ड, एक ही पेज का सीवी करिए। मेरा मानना यह है कि आप हर वो इन्फॉर्मेशन डालिए जो आपको लगता है कि इस जॉब के लिए ये वर्थ है, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं डाली। फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत से बच्चों की सीवी देखे हैं कि जो सीसी वाले हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा, उन्होंने लिखा है कि वन फर्स्ट प्राइज इन इंटर हॉल डिबेट, और वहीं लिखा है वन थर्ड प्राइज इन इंटर हॉल डिबेट। देयर इज नो पॉइंट इन राइटिंग डाउन थर्ड प्राइज बिकॉज़ यू हैव ऑलरेडी वन द फर्स्ट प्राइज। तो आप थोड़ा सा दिखा दीजिए कि भाई देखिए मैं टीम वर्कर भी हूँ, मैं इवेंट ऑर्गेनाइज भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स भी हैं, मैं मेरे अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी फैक्टर है, एनजीओ बहुत इंपॉर्टेंट है ज्वाइन करना। मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई ना कोई एनजीओ जरूर ज्वाइन करें। खास तौर से जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, मैं बता दूं ये बात, बाहर की यूनिवर्सिटीज ये बहुत देखती हैं आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज वाला पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक ग्रेड्स के बाद जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है, वही देखी जाती है कि आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज कितनी स्ट्रॉन्ग। और अगर आपने एनजीओ ज्वाइन नहीं करी तो प्लीज ज्वाइन करिए, वो इंडिकेट करता है कि आपके अंदर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला भी फैक्टर है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अब तो फादर्स नेम या मदर्स नेम या ये सब कोई मेंशन करता नहीं है। एक चीज और भी मैंने देखी है कि बहुत से बच्चे हाई स्कूल से शुरू करते हैं बताना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हाई स्कूल फिर 12th, नहीं, आपको पहले वो क्लास लिखनी है जो आपकी लास्ट क्लास। जैसे मान लीजिए परसुइंग बीए इकोनॉमिक्स फाइनल ईयर, 10+2 फिर हाई स्कूल। आपको लगता है कि आपका एकेडमिक ग्राफ थोड़ा जिगजैग है, मतलब फर्स्ट सेकंड चल रहा है, तो उसको मत मेंशन करिए, सिर्फ आप डिवीजन लिख दीजिए, ठीक है, अवॉइड करिए उसको। और तभी अगर आपको लगता है कि ज्यादा ही वेरिएंस है तो फिर आप फिर रिजल्ट मत लिखिए, सिर्फ पास लिख दीजिए, पास 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 पास, ठीक है। और थोड़ा अवॉइड करिए, उसमें अननेसेसरी क्वेश्चन हो। हॉबीज एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हॉबी जरूर लिखिए, क्योंकि हॉबी भी मैक्सिमम 2 और मिनिमम 1। और हॉबी और हैबिट में फर्क है। मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स लिखते हैं शॉपिंग, स्लीपिंग, ये सब हॉबीज नहीं होती है। हॉबी वो होती है जिसका आपके करियर में कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ देना चाहूंगा। सर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास कोई हॉबी नहीं होती एंड दे ड्रेड बीइंग आस्क्ड दिस क्वेश्चन। मत लिखिए, हॉबी लिखना इज नॉट मैंडेटरी इन द सीवी। तो सर ठीक है, कोई ऐसी हॉबीज हैं जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में डेवलप कर सकते हाँ हैं स्टूडेंट? हाँ, उसमें यह है अफनान के, देखिए होता यह है कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि डू यू हैव अ हॉबी, और आप कहते हैं कि नहीं मेरी हॉबी तो नहीं है, बट इन माई फ्री टाइम आई लाइक टू डू दिस। मतलब फॉर एग्जाम्पल आई डोंट हैव अ पर्टिकुलर हॉबी, बट इन माई फ्री टाइम, इन माई लीजर टाइम आई लाइक टू रीड बुक्स फॉर एग्जाम्पल। तो आप ऐसे इसको आप डिफेंड कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह एंड में आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हमारा एक एक्सक्लूसिव सेशन होना चाहिए, हाउ टू फेस अ जॉब इंटरव्यू। उसमें मैं आपको ये सब चीजें क्लियर करूंगा कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और उनको कैसे काउंटर करने की, क्योंकि आज नहीं तो कल सबको इंटरव्यूज फेस करना।
ठीक है, किसी को मास्टर्स के करने हैं, एमबीए के, किसी को जॉब के करने हैं, उसको उस पर हम एक सेशन जरूर करेंगे स्टूडेंट्स के साथ। तो सीवीज पे जो है, और आपको कोई लगता है कि कोई आपका इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है, उसको हाईलाइट कर दीजिए, बोल्ड करके उसको इटैलिक्स में कर दीजिए, ताकि एचआर की नजर फौरन यहाँ पड़ जाए, या किसी की भी फॉर एग्जाम्पल, कि अच्छा ये चीज आपने मेंशन करी है, आप चाहती हैं कि मेरी तवज्जो इस पे आए, यू आर सीकिंग माई अटेंशन ऑन दिस पॉइंट। तो कोई भी आपका, जैसे मान लीजिए आपने कोई स्कॉलरशिप जीती है, आपने कोई प्राइज जीता है, आपने कोई पोजीशन हासिल करी है, कोई भी ऐसी चीज जो आप मेंशन करना चाहती हैं, आपका कोई भी अचीवमेंट है, उसको आप जरूर लिखिए, उसको बोल्ड कर दीजिए और इटैलिक्स में कर दीजिए, ताकि मेरी नजर उस पर आ जाए कि हाँ ये वर्ड, सर ये ये देखना जरूर। इजी है जिन्होंने स्कॉलरशिप्स जीती हैं, जिनके पास हॉबीज हैं। अब व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स जो मतलब स्कूल लाइफ से इतना सीरियस नहीं रहे हैं, कॉलेज लाइफ में भी इतना सीरियस नहीं रहे हैं, बट नाउ दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट। तो शॉर्ट पीरियड में कौन से कुछ ऐसी स्किल्स हैं या फिर कोर्सेज हैं जो वो कर सकते हैं सो एज टू बिल्ड अ गुड सीवी? देखिए अफनान, जहां तक उसकी ये बात है, देखिए पहली बात तो ये है कि कहीं ना कहीं, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिन बच्चों ने स्कूल से तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ यूनिवर्सिटी लाइफ से को करिकुलर एक्टिविटीज में थोड़ा इन्वॉल्व रहे हैं, और पढ़ाई के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट किया है, ऑनेस्टली कहीं ना कहीं उनकी अप्रोच तो होती है, इसमें कोई शक नहीं। खास तौर से मैं आपको एग्जांपल दूं, जो हम लोग हमारे ग्रेजुएट्स बाहर अप्लाई करते हैं, बाहर के मुल्कों में, या इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करते हैं, जैसे टिस हो गया, या आईएम्स हो गया, या जामिया का मास कॉम हो गया, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हो गए। तो ऑब्वियसली अगर मेरा, दे ऑल लुक फॉर योर पोर्टफोलियो, आपका प्रोफाइल, राइट फ्रॉम योर स्कूल टिल योर ग्रेजुएशन डेज। तो जाहिर है मेरे पास नहीं है, आपके पास है, तो आपके पास डेफिनेटली एक एडवांटेज तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हेलो, या आपको अगर जॉब करनी हो चाहे ना करनी हो, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट लाइफ में, जो ये दिखाती है आगे चल के कि आपके अंदर टीम वर्क एबिलिटी भी है, आपके अंदर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी भी है, आपके अंदर क्राइसिस को मैनेज करने की भी एबिलिटी है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी है, ठीक है, आप एक टीम को भी लीड कर सकते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी है, हर चीज है, तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो ये मैं एज ए स्टूडेंट कैसे दिखाऊं, सिर्फ ऐसे कैसे दिखाऊंगा, बाय माय को करिकुलर एक्टिविटीज। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज बिफोर यू पास आउट ट्राई टू, अब जाहिर है जिनका फाइनल ईयर है, अब तो हालात थोड़ा क्राइसिस वाले हैं, लेकिन जो लोग सेकंड ईयर्स में है, फर्स्ट ईयर्स में है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, वो टीपीओ ज्वाइन करें, वो सीसी ज्वाइन करें, वो एनजीओ ज्वाइन करें, वो हॉल की सोसाइटीज को ज्वाइन करें, कमिटीज को ज्वाइन करें, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी को जरूर डेवलप, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So this is the best platform for any student to join because this is giving you so much exposure जो आपको I think hardly किसी एनजीओ में मिल रहा है इस वक्त। मतलब लॉकडाउन की ड्यूरेशन में भी we are working, we are there for our. Yeah, no, I really appreciate the people behind this, Sameer and all of you are doing a commendable job. जाहिर है यही चीज, इसी को हम कहते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट, कि द थिंग शुड मूव ऑन, दे शुड गो ऑन। हालात टेस्टिंग टाइम्स हैं, हम लोग बहुत सी चीजें नहीं कर सकते, बट स्टिल वी आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी एंड वी आर डूइंग अवर जॉब। तो ये अच्छी चीज। सर अगर हम लोग इंटरव्यू की बात करें तो व्हाट आर दोस थिंग्स जो अ कैंडिडेट शुड कीप इन माइंड व्हाइल एंटरिंग दैट रूम, एंड व्हाट प्लस देयर इज वन मोर क्वेश्चन कि एक क्या यूनिक चीज अपनी पर्सनालिटी से यू शुड पुट फॉरवर्ड सो एज टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड? अफनान, मेरे हिसाब से, क्योंकि ये एक पूरा एक, इट्स अ फुल फ्लैश टॉपिक डिस्कस अपॉन, लेकिन Yes. जो मैंने पहले बात कही थी आपसे, 3 बातें जो मैंने कही, मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स उसको दोबारा एक बार सुने, मैं फिर ये बात रिपीट कर दूँ। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, पॉजिटिव पर्सनैलिटी एंड अपडेटेड नॉलेज, ये 3 चीजों पर अगर आप लोग काम कर लेंगे, मैं आपको ये बात दावे से कह रहा हूँ कि आप कहीं मात नहीं खाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल देकर चीजों को क्लियर कर देता हूँ ना। आपने कहा था वाइल एंटरिंग द रूम, तो आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ अ यूपीएससी क्वालिफायर। Once an IS as qualifier, he when he entered the interview, him was just just think about it. IS UPSC का इंटरव्यू
कितने मुश्किल से आदमी पहुंचा होगा. On him was the panel looked towards him and said, "We hate to see your face." Just imagine. We hate to see your face. But that gentleman was a man of self-confidence. He smiled and he gently replied, "Well, sir, I appreciate your observation, but I'm sorry, the feelings are mutual." And the interview started. So now this is what we call self-confidence. They were not trying to intentionally hurt him. They were only trying to judge whether he's a person of self-confidence or not, because he's actually aspiring for to become a nice officer. Once a person entered the room and the panel said, the candidate said, "Good morning, sir." And the panel said, "What is good about this morning?" And the candidate said, "Well, sir, this morning is very good because today I'm going to interact with a learned panel like you." Now, this is what we call confidence and presence of mind. और अफनान, ये confidence, ये presence of mind किससे आता है? Co-curricular activities. कुछ हम लोग inherit करते हैं और कुछ हम लोग सीखते हैं. और सीखने का बेहतरीन तरीका है co-curricular activities. और मैं अपने स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंशाल्लाह जब हालात सही होंगे और दोबारा जिंदगी ट्रैक पे आएगी, तो एएमयू में जो फोरम्स हैं, जो कमिटीज हम लोग बनाते हैं, जो यूसी लेवल के इवेंट्स होते हैं, उसमें प्लीज पार्टिसिपेट करें. बहुत इंपॉर्टेंट है. डोंट बी पार्ट ऑफ द क्राउड. भीड़ का हिस्सा मत बनिए. आगे निकल के आइए और जब भी आपको मौका मिले इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने का, वेलकम करने का, वोट ऑफ थैंक्स देने का, डिबेट्स करने का, स्पीचेस देने का, किसी भी जबान में हो, जरूर आगे निकल के आइए और करिए. वो उससे अच्छी लर्निंग कहीं नहीं हो. Yes, sir, exactly. Sir, there's a viewer, he's asking what difference between a CV and a bio data. It was asked long ago. I'm so sorry I missed that out. Actually, आज की डेट में CV, curriculum vitae is actually used for a job, aspiring for a job, and that too usually for freshers. Biodata nowadays is more used for matrimonial purposes and personal uses. Yeah. There are three concepts: CV, resume, and biodata. So CV is usually used for freshers. Resume usually for the people who want to switch over. Resume, CV is more or less same thing, but biodata is something more personal in nature. So there's also one viewer. He asked that what are the points that should be there in your CV when you apply for SSGSA award? SSGSA अवार्ड के लिए या सीसा अवार्ड के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, पहली बात तो ये है कि लुक फॉर योर एकेडमिक रिकॉर्ड्स. ठीक है, यू शुड हैव डिसेंट एकेडमिक रिकॉर्ड्स. तो वो तो दैट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, ऑलरेडी हो चुका. जो आप कर सकते हैं, हाँ, जो आप कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है. सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि दे यूजुअली लुक फॉर योर ओवरऑल प्रोफाइल. सो यू शुड बी गुड इन को करिकुलर एक्टिविटीज. ठीक है, स्पोर्ट्स हो सकता है, बेसिक लीडरशिप क्वालिटीज, मतलब आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को देखते हैं. और मैं यहाँ इनसे कहना चाहूंगा कि इट्स नॉट ओनली अबाउट SSGA, इट इज अबाउट अप्लाइंग फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज. दे लुक फॉर अ पर्सन विद गुड academic grades and co-curricular activities. तीसरी चीज, दे ऑल्सो लुक फॉर दैट फैक्टर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो मेरी उन स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि एनजीओ में इसको ज्वाइन करें. और वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बाहर की यूनिवर्सिटी बहुत देखती है कि आप एज ए स्टूडेंट आपके अंदर सोशल फैक्टर आपका कितना स्ट्रॉन्ग. वो ज्वाइन करिए, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करिए और ग्रेड्स को इम्प्रूव रखिए. और दूसरी बात यह है कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, तो अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं बाहर से, MCOM, MA, MSc, तो जाहिर है आपको GRE देना होगा. अगर आप चाहते हैं कि आपको स्कॉलरशिप के जरिए, GRE इज ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन. GRE के अंदर वही न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स और इंग्लिश आती है. तो आपको जो है GRE में अच्छा स्कोर करना होगा. जितना अच्छा स्कोर आप स्कोर करेंगे, उतनी अच्छी आपको यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिलेंगी. जहां तक बात टोफिल की, आईलेट्स की है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है. वो बहुत सी यूनिवर्सिटी तो लेती भी नहीं है. बहुत सी यूनिवर्सिटीज ये कहती है कि आप हमें अपने डीन ऑफिस से एक लेटर दे दीजिए कि आपका अंग्रेजी में आपका इंस्ट्रक्शन. लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटीज मांगती हैं. TOEFL is usually asked by North American universities, Canada and US, and IELTS basically they are asked by Australia, New Zealand and European universities. लेकिन जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, वहां पे TOEFL या IELTS की जरूरत नहीं पड़ती. तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एकेडमिक ग्रेड्स को अच्छा रखिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करिए और एनजीओ ज्वाइन करिए और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाइए.
और आखिरी है कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो जीआरई की तैयारी में लग जाइए। So we can have another. I just want to tell my viewers कि abroad education के लिए हम लोग एक different session, we are planning to conduct a different session altogether. So Right. जो भी आपके और भी sessions के demands हैं, you can always DM us, you can always text us, we'll conduct that. और ये भी है कि जितने भी टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सीवी, इंटरव्यू, इन सब पर हम लोग प्लान कर रहे हैं अलग अलग सेशंस लेने का इन डिटेल, इन कंप्लीट डिटेल. यू कैन ब्रिंग ऑल योर क्वेश्चंस. राइट. अच्छा अफनान, इसमें मैं एक थ्रू यू मैं जो है स्टूडेंट से भी ये कहना चाहूंगा कि देखिए ये जो लॉकडाउन है या मैं अक्सर मैंने मेरी माय फ्रेम्ड फिलॉसफी दीस डेज कि इज लॉक आवरसेल्व्स, नॉट फिजिकली. अनलॉक मींस वी नीड टू अनलॉक आवरसेल्व्स मेंटली. वी नीड टू अनलॉक अवर पर्सनालिटी, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो आप प्लीज ये मत सोचिएगा कि खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड ये चलने वाला है, ऐसा नहीं है. इट्स अ मैटर ऑफ कपल ऑफ मंथ्स. उसके बाद जिंदगी ट्रैक पे इंशाल्लाह आएगी. चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होने वाली हैं, प्रेशर होगा आपके ऊपर, पढ़ाई का भी होगा, करियर का भी होगा, कॉम्पिटिशन का भी होगा. तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि कंफर्ट जोन में मत रहिए. जैसे ये विंग्स ऑफ डिजायर इनिशिएटिव किया है और लोग कर रहे हैं, प्लीज ज्वाइन करते रहिए ताकि जिसको हम कहते हैं कि हमारे ऊपर रस्टिंग ना हो जाए. ऐसा ना हो कि ये लॉकडाउन हमें 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 निगेटिविटी की तरफ लेके चला जाए. मैं बहुत से बच्चों से बात करता हूँ, मुझे यू नो एक फीलिंग आ रही है कि साहब वो आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, आई एम फीलिंग लो. नो नीड टू फील डिप्रेस्ड एंड लो. ठीक है. हर सबके साथ ये क्राइसिस, ये सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते. और जिंदगी में 80% सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर ही होती है. ठीक है. हमारे कंट्रोल में यह है कि हमें अपने आप को अपडेटेड रखना है, हमें अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, हमें अपने आप को स्किल्ड रखना है. और आने वाले वक्त के लिए जो 3-4 महीने के बाद जो आने वाला वक्त है उसके लिए अपने आप को हमें तैयार रखना है. और ये कोशिश करनी है कि हम जब इंशाल्लाह लॉकडाउन के बाहर आए और यूनिवर्सिटी दोबारा इंशाल्लाह अपने रौनक पे आएगी तो हम एक बेहतर बन के बाहर आए ताकि हम अपने अपने लिए और अपने समाज के लिए कुछ कर पाए. इज वेरी इंपॉर्टेंट. So, sir, are there any specific courses जो आप स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहेंगे जो वो इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में कर लें? मेरा मानना यह है, पहली बात तो यह है कि मैं स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि MS ऑफिस जरूर कर लें. मतलब अगर एक्सेल कर लें, बेसिक एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट. और मैं देख रहा हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा IT स्किल्स पे भी और काम करने की जरूरत है. खासतौर से जो नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं उनको बेसिक IT स्किल्स आनी चाहिए. वर्ड थोड़ा सीख लें, ज्यादा नहीं, वो हल्के मतलब वर्ड और एक्सेल की बेसिक सीख लें क्योंकि ये वो चीजें हैं जो कि कोई भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट से एक्सपेक्ट करेगा. तो बेसिक IT स्किल्स सीख लें. उसके अलावा कोई भी अगर आपको लगता है कोई ऐसा ऑनलाइन कोर्स है जो आपको आपके करियर में कोई वैल्यू ऐड कर सकता है, अननेसेसरी मत करिए. ऐसा करिए जो आपकी नॉलेज को एनहांस कर सके, चाहे वो आपके कोर्स में हो चाहे वो कोर्स में ना हो, बट इट कैन मे ऐड वैल्यू टू योर लाइफ, टू योर करियर. आप ऐसा कोर्सेज हैं. तीसरी बात यह है कि अगर हो सके, अगर टाइम हो आपके पास, पॉसिबल हो, तो एक फॉरेन लैंग्वेज का बेसिक जरूर सीख लीजिए, चाहे वो फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, जर्मन हो. ऑनलाइन आप बेसिक सीख लीजिए, फंक्शनल जर्मन, फंक्शनल अरेबिक, फंक्शनल फ्रेंच, जिससे आपको लगे कि हाँ भाई थोड़ा सीख लीजिए. और लेकिन IT को अपनी स्किल्स को आप बेहतर करें क्योंकि आप देख रहे हैं, देखिए कि चीजें अब इतनी चेंज हो रही हैं. बाय आई मीन वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, बट थिंग्स विल चेंज लाइक एनीथिंग. राइट. दूसरी जो मेरी थोड़ा सा कंसर्न ये भी है कि मैं बहुत से स्टूडेंट्स को देखता हूँ, दे डोंट नो व्हाट इज स्काइप. वो जब हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, मैं आपको बता दूं चीजें बहुत चेंज होने वाली हैं. हमारे यहाँ TPO में कंपनी से हमसे अप्रोच कर रही हैं ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के लिए. तो स्काइप IDs हमारे बहुत से बच्चों के नहीं होते हैं. तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अपने स्काइप IDs क्रिएट करिए. स्काइप पे कैसे लॉग इन करते हैं वो आपको आना चाहिए, कैसे इंटरेक्शन करते हैं स्काइप पे, ये जूम ऐप क्या है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होती है. तो अगर आपको आता है तो अपने आप दोस्तों को बताइए कि भाई थोड़ा जूम ऐप क्या होता है, स्काइप क्या होता है, स्काइप पे कैसे ID बनता है, स्काइप पे इंटरेक्शन कैसे होता है. ये सब बेसिक चीजें आप करिए. क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अभी हमारे पास कुछ कंपनी से अप्रोच किया है हमसे, तो हम इंशाल्लाह ईद के बाद जब चीजें और स्ट्रीमलाइन होंगी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब मतलब रिक्रूटमेंट्स कराएं ऑनलाइन. इंटर्नशिप्स तो हमारे पास चली रही हैं ऑनलाइन. और मेरी एक रिक्वेस्ट और भी है स्टूडेंट से कि एक प्लेटफॉर्म है बड़ा अच्छा है, इंटर्नशाला के नाम से. तो आप लोग इंटर्नशाला के जरिए ऑनलाइन
इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, बहुत सारी फील्ड्स में उनके पास, दे हैव गॉट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो आप इंटर्नशाला के जरिए आप डिजिटल इंटर्नशिप्स कर सकते हैं जिस फील्ड में आप चाहें। तो जहाँ भी मौका मिले, एक हफ्ते का, 15 दिन की, 20 दिन की इंटर्नशिप्स करिए जितनी आप कर सकते हैं, ताकि आपको सीखने को भी मिले और आपके सीवी में, आपने सीवी के अंदर भी लिखते हैं। एक कोई फॉरेन लैंग्वेज का बेसिक वक्त निकाल के सीखते रहिए। और तीसरी बात मैं कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा सा स्पोकन इंग्लिश पे माहौल बनाइए, अपने किसी भाई के साथ बैठ के, दोस्त के साथ बैठ के कैमरे में रिकॉर्ड करिए, अपना इंट्रोडक्शन बोलिए, फिर उसको देखिए कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मेरी अंग्रेजी मैं ठीक बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा। तो इस इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा, आपका मोटिवेशन भी मेंटेन रहेगा, और आपको ये फीलिंग नहीं आएगी कि मेरा टाइम खराब हो रहा है या मेरा करियर का क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ दिन की बात है इंशाल्लाह ताला। हालात कोई कभी एक वक्त ऐसा नहीं रहता, हालात बहुत जल्दी चेंज होंगे, लेकिन चीजें बहुत थोड़ा थोड़ा सा प्रेशर होने वाला है, तो तैयार रखिए। जो बच्चे एमबीए वगैरह की कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि हाथ पे हाथ रख के ना बैठ जाए। खास तौर से वो बच्चे जो बीए वगैरह के हैं, जिनके मैथ्स में थोड़ा सा कमजोर है, उनके पास ये मौका है तो वो अपनी मैथ्स को इम्प्रूव करें। क्योंकि मैं ये भी आपको बता दूं कि एमबीए एंट्रेंस के अंदर आज भी डिसाइडिंग मैथ्स होती है। जो लोग मैथ्स, क्योंकि अंग्रेजी जी के लोग 19-20 करके आते हैं नॉर्मली, लेकिन जो लोग मैथ्स और रीजनिंग अच्छा करके आते हैं, उनका सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा ब्राइट। तो मेरी खास तौर से बीए के बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि RS अग्रवाल अगर आपके पास वो आप खुद सॉल्व करिए, 9-10 की मैथ्स खुद सॉल्व करिए। हो सके तो एमयू के जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं पिछले 5 साल के, वो अगर सॉल्व कर सकते हैं वो सॉल्व करिए। जो भी आपका वीक एरिया है उस पर काम करिए। जीके के लिए आप ऑनलाइन अखबार पढ़ते रहें, उसको इस दिक्कत की बात नहीं है। अंग्रेजी के लिए आप बहुत ज्यादा उसको कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो, अगर आपका सिलेबस है और एमयू का, जामिया वगैरह का, तो आप उसके पैटर्न के हिसाब से सिर्फ आप तैयारी करते रहिए। क्योंकि देखिए जैसे ही हालात ठीक होंगे इंशाल्लाह, एकदम से चीजें हमारे हम ऊपर आएंगी। बहुत चीजें पाइल अप हो गई। क्वेश्चन है कि इंग्लिश राइटिंग स्किल्स कैसे इम्प्रूव करें। द व्यूअर देखिए, कि इंग्लिश राइटिंग स्किल्स कैसे इम्प्रूव। हाँ, इंग्लिश राइटिंग के लिए मेरा थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये है, देखिए जब हम बात करते हैं राइटिंग स्किल्स की, तो हमारे कोई भी राइटिंग, चाहे हमारा पैसेज हो, हमारा आर्टिकल हो, हमारा ऐसे हो, वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, इंट्रोडक्शन, डिस्कशन और कंक्लूजन। हमें इंपॉर्टेंट है 2 बातों का ध्यान रखना। पहला, बल्कि 3 बातों जो अपनी राइटिंग पे हम बात करते हैं। पहला, हमारा कंटेंट सेंसिबल होना चाहिए। दूसरा, हमारी लैंग्वेज में प्योरिटी होनी चाहिए। और तीसरा, हमारा फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, डिस्कशन ऑफ द टॉपिक एंड कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक। आप चाहे यूपीएससी लिखें, आप चाहे कोई ऐसे लिखें, आप कोई भी एग्जाम दें, आइडियल राइटिंग स्किल्स 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। सेंसिबल कंटेंट, द कंटेंट शुड बी इन लाइन विद द टॉपिक। प्योरिटी ऑफ द लैंग्वेज, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा कि साहब, आई हर्ड द स्पीच ऑफ मिस्टर एक्स, इट वॉज माइंड बॉगलिंग। इसकी जगह आप लिख सकते हैं कि आई हर्ड द स्पीच ऑफ मिस्टर एक्स, इट वॉज हाईली इंप्रेसिव। ऑलराइट, सो दैट प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज। गाइज, फ्रेंड्स की जगह हम लोग गाइज लिख दिया। तो ये सब इनफॉर्मल वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स, फिलर्स, ये सब अवॉइड करने होते हैं। तो प्योरिटी ऑफ द लैंग्वेज हैज टू बी मेंटेन, चाहे आप किसी जबान में लिखें, हिंदी, उर्दू या अंग्रेजी। और दूसरा, फॉर्मेट ये होना चाहिए, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, जीएसटी क्या है, जीएसटी क्यों है, और जीएसटी को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल। सो इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, कंक्लूजन, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर जीएसटी पे कोई सवाल आता है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो मुझे उसको 100 वर्ड्स में कैसे लिखना है, मुझे 500 वर्ड्स में कैसे, ठीक है। तो 100 वर्ड्स में सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा ऑफ द टॉपिक, और 500 वर्ड में क्या होगा, इंट्रोडक्शन, डिस्कशन और कंक्लूजन। Alright, sir. So I hope we were able to answer your questions, all your questions. Since we are time constrained, so sir, I think we have to come to the end of this session. Yes, I have namaz at 9 and then followed by Tarawih also. But let me tell you, Afnan, that for my students and for their sake, I'm always available. No need to be very formal with me. I'm like your guardian, all right. I'm not addressing the students as a TPO, not at all. I'm only addressing them as their alumni and as their guardian. So मेरे लिए कोई बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। You just tell me, हम लोग जनरल डिस्कशन भी कर लेंगे, कभी सीवी पे कर लेंगे, कभी इंटरव्यू पे कर लेंगे। जनरल मोटिवेशन भी जरूरी है, वैसे भी हम बात कर लेंगे। तो इट इज ऑलवेज एन ऑनर टू टॉक टू माय स्टूडेंट्स, एंड आई होप दे मस्ट बी कीपिंग वेल. Please stay at your homes, be happy, and
in the last couple of some personal advices also to all of you during the lockdown, especially. I mean, whatever faith you believe in, whether you are a Muslim or you are a Hindu or you're Sikh or a Christian, connect with your God. All right. Do some self introspection. Analyze कि आपने अभी तक अपनी जो जिंदगी गुजारी है वो कैसे गुजारी है, कहाँ कमी हुई है, कहाँ पे आपको काम करने की जरूरत है अपने ऊपर एज अ पर्सन. ठीक है. नोबडी इज परफेक्ट. आपको लॉकडाउन में ये टाइम मिला है कि आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें. थोड़ा सा सोचे बैठ के एज साद हमीद, एज अफनान, एज मिस्टर एक्स, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमसे अभी तक जिंदगी में क्या गलती हुई है, हमें आने वाले वक्त में अपने ऊपर और क्या सुधार करने की जरूरत है. ठीक है. गॉड से कनेक्ट करें. सीक हिज मर्सी, सीक रिपेंटेंस. प्लीज एड गिव वैल्यू टू योर फैमिली. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके रिलेशन, आपकी फैमिली, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रायोरिटी भी होनी चाहिए वो आपकी फैमिली, आपके रिलेशन होने चाहिए. हमने इस लॉकडाउन में देखा, कभी कभी हम लोग ये करते हैं जिसको हम कहते हैं उर्दू में नाशुक्री करते हैं, कि हम लोग उन चीजों को वैल्यू नहीं देते जो हमारे पास होती है, चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे हमारे दोस्त हो, चाहे हमारी बहुत सी चीजें हो. वी डोंट गिव वैल्यू टू देम, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड. लेकिन इस लॉकडाउन ने हमें सिखा दिया है कि जिंदगी में हर चीज की इक्वल वैल्यू, हर चीज की वैल्यू, और हमें वैल्यू देने की जरूरत है. सो प्लीज गिव वैल्यू टू योर फैमिली, टू योर पेरेंट्स, टू योर रिलेटिव्स, टू योर फ्रेंड्स. और लास्ट में मैं एक बात और कहूंगा, मैं शायद पिछली बार भी कही थी जब मेरा सेशन जावेद के साथ हुआ था, कि बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च हुई थी हार्वर्ड में, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने टॉप ग्रेजुएट्स के साथ एक रिसर्च करी कि ये कामयाब क्यों है लाइफ. आप यकीन मानिएगा कि वो कामयाब इसलिए नहीं थे कि उनके पास पैसा था या उनके पास डेजिग्नेशन. वो कामयाब इसलिए थे क्योंकि दे न्यू हाउ टू मैनेज रिलेशंस ड्यूरिंग क्राइसिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्राइसिस के टाइम में हम अपने रिलेशंस को कैसे मेंटेन करते हैं, ये आप प्लीज सीखिए. ठीक है. इंट्रोस्पेक्शन जरूर करिए अपनी पर्सनैलिटी का, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है. अपने करियर प्लानिंग करिए आप बैठ के, बहुत इंपॉर्टेंट है. और करियर प्लानिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपनी स्ट्रेंथ्स एनालाइज करिए, अपनी वीकनेसेस देखिए, और देखिए कि जो आप करियर चूज करना चाह रहे हैं या चाह रही हैं वो वाकई इज इट इन लाइन विद योर पर्सनैलिटी और इट इज नॉट. Is it a fascination or it is actually meant, is in line with your personality. तो लॉकडाउन को मैंने जैसे पहले कहा था कि प्लीज अनलॉक योरसेल्फ, अनलॉक योर पर्सनैलिटी, अनलॉक योर थॉट प्रोसेस एंड मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस लॉकडाउन. इंशाल्लाह थिंग्स विल बी फाइन वेरी सून. आई विश you very best for your health for Ramzan. I wish all the very best for your families. May Allah bless them all. May Allah provide them a lot of peace, happiness and prosperity in the years to come. और मेरी दुआ है दिल से कि अल्लाह ताला जल्दी से हालात को बेहतर करें, फिर एक बार फिर जिंदगी ट्रैक पे आए, हमारा चमन फिर बाहर आए, फिर से हमारी लाइब्रेरी भरी भी हो, फिर से हमारी कैंटीन भरी भी हो, फिर से हमारी क्लासेस भरी भी हो. और इंशाल्लाह बस इम्पोर्टेंट ये है कि हम कोशिश करें कि हम एक बेहतर इंसान बन के बाहर निकल के आए, ताकि हम सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें और जो कमी है उनको हम लोग दूर सकते. जो खराब आदतें हैं उनको छोड़ के निकल के आइए, निगेटिविटी को छोड़ के आइए और एक पॉजिटिव इंसान बन के लॉकडाउन से बाहर. With this note, I am again thankful to the Wings of Desire for inviting me here, and inshallah I'll be in touch with you. Please pray for my health also and for my well-being. Sure sir, sure. Thank you so much for joining us sir. और हम लोग ऐसे सेशंस लाते रहेंगे आपके लिए, so please stay connected. और हम लोग का साथ सर के साथ ऑलरेडी एक सेशन हो चुका है, जो लोग ने मिस कर दिया, you can always go back to our page, The Wings of Desire, and always watch. So with this, I take your leave. Thank you so much. Thank you, Fernand. Thank you.